Good morning, ma'am. Good morning. मैम Yes. हमारा सिलेबस क्या था एमएसटी के लिए? एमएससी के लिए आपका जो बस सस्पेंशन तक आएगा। सस्पेंशन जितना हमने अभी तक कवर, हाँ सस्पेंशन तक कंप्लीट वहां तक आएगा। मॉड्यूल में बात करें तो पहला मॉड्यूल अपना और सस्पेंशन कहाँ तक आता है? लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमने सॉल्यूशन किया है, इमल्शन किया है और सस्पेंशन किया है। मैं आपको कल बता दूंगी क्या सिलेबस आने वाला है, ठीक है? मॉड्यूल वाइज। ओके Okay. So I guess it's 11:09 already. Only 26 of you have joined. $28. It's 11:10. I'm just taking attendance. So okay. So in last lecture, is the slide visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In last lecture, we No, were ma'am. covering what are the. Is it visible now? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay. In last lecture, we covered what are the ingredients of a suspension. So we started with the first ingredient, that was suspending agent. ठीक है, major ingredient क्या है आपका? Suspending agent है. Suspending agent is any particle जो आपके suspending agent is any material जो आपके particle को suspend रखे, settle ना होने दे. ठीक है. Now suspending agent it can be a viscosity enhancing agent. वो हो सकता है viscosity बढ़ा रहा हो मीडियम का, या हो सकता है it forms a film around your particle कि जिसकी वजह से जो interparticle attraction है वो कम हो जाए. ठीक है. तो interparticle attraction अगर कम हो रहा है तो particles आपस में जुड़ेंगे नहीं and they will not form a large particle and they will not settle. ठीक है. So other than suspending agents, there are various other types of ingredients which go into your suspension. But before that, I'll just give you a few examples of suspending agents. So commonly used suspending agents are your xanthan gum, carrageenan, sodium carboxymethyl cellulose, Avicel. So this is your xanthan gum. So these are all gums which come in dry powder form. So if you add this powder into any liquid, जैसे water में हमने dissolve किया, तो water का क्या होता है? Viscosity बढ़ जाता है, उसका flow property change हो जाता है. So these all your suspending agents, they give thixotropy to your vehicle. Thixotropy is the branch of science which deals with the flow property of liquid. ठीक है. अब suppose there is water है, उसमें हमने xanthan gum ऐड कर दिया है. ठीक है. We have added xanthan gum. तो water का जो है viscosity उससे बढ़ जाता है. ठीक है. उससे viscosity बढ़ जाता है. Now suppose एक water था जिसमें xanthan gum नहीं था, एक water में xanthan gum है. So अगर if we will pour both the liquids, simple plain water and gum plus water, तो मुझे बताओ कि ज्यादा easily flow कौन करेगा? Water flow करेगा या gum plus water? Water. Ma'am, Water, because उसका viscosity is low. बट हमने क्या किया है? उस water की thixotropy change कर दी है, उसकी flow property change कर दी है. Now we have added the gum. So अब वो थोड़ा slowly flow करेगा. ठीक है. So got the point कि why suspending agents are used. So these are few more examples of suspending agents कि कौन से commonly used suspending agents हैं. Now depending on the pH range कि किस pH range पे वो viscosity provide करते हैं और या किस pH range पे they remain stable, and what is the concentration range of the concentration which you can use. So commonly used suspending agents in suspensions are sodium alginate, methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, and carboxymethyl cellulose, and colloidal silicon dioxide. Now suppose you are going to prepare a suspension for suppose skin. Skin का pH कितना होता है? Any of you? Skin का pH is slightly alkaline. Okay. Idea है? Skin का pH जो है that is around 6 के around होता है skin का pH. Alkaline होता है skin का pH. So suppose you are preparing any suspension. अब मुझे बताओ ये set of suspending agents यहाँ पे given है. Which suspending agents you can use? कौन सा suspending agent हम इसमें use कर सकते हैं? 6 to 8. 6 to 8 वाला भी यूज कर सकते हैं. सोडियम अल्जिनेट भी यूज कर सकते हैं बिकॉज उसका पीएच रेंज क्या है? 4 to 10 है. मिथाइल सेल्यूलोज भी यूज कर सकते हैं बिकॉज उसका पीएच रेंज क्या है? 3 to 11 है. तो 6 लाइज बिटवीन 3 to 11. देन हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज भी यूज कर सकते हैं. सो ये सारे हम यूज कर सकते हैं. नाउ सपोज देयर इज एनी साइट, ऐसी कोई साइट है, टॉपिकल साइट है आपकी, जहां पे आपको सस्पेंशन देना है और पीएच वहां पे एसिडिक है, तो इस सेट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स में से कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट आप यूज करोगे एसिडिक पीएच के लिए? जिस साइट ऑफ एक्शन पे आपका पीएच एसिडिक है और आपको सस्पेंशन का पीएच भी एसिडिक रखना है. Colloidal silicon dioxide. Colloidal silicon dioxide. Yes, ma'am. Okay, very good. So you got the point कि हमने डिपेंडिंग ऑन द पीएच रेंज
हम सस्पेंडिंग एजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. सो व्हेनेवर यू विल कम टू लैब, जब फिजिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में, तो you can see all these suspending agents. ये commonly used suspending agents है which you can find in labs. So there are some more examples. तो जैसे ये alginate है, this looks like this granules, ये white जो है needle shaped granules की form में होता है, ठीक है. Now alginate का property क्या है कि अगर if you heat it 60 डिग्री से ज्यादा हम इसे हीट करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही हम इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं इसकी विस्कोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. नाउ we don't have to go into detail of all these. Now this is your methyl cellulose. ये भी जो है आपका मिथाइल सेल्यूलोज को अगर आप हीट करोगे और वाटर में ऐड करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जेल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसे कूल करोगे तो ये क्या होएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में. सो दिस इज रिवर्स, जैसा हमारे सोडियम आल्जिनेट के केस में था उसका रिवर्स क्या है मिथाइल सेल्यूलोज के केस में. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर या डिजायर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या है अपना सस्पेंशन उस तरीके से बना सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर सस्पेंडिंग एजेंट. फिर ये हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज है, ये सारे कॉमनली यूज्ड जो है suspending agents है. In fact these all suspending agents they are also used in formulation of your tablets में भी ये सारे जाते हैं as binding agents because ये gum like consistency provide करेगा. तो अगर हम किसी पाउडर का टैबलेट बनाना चाहते हैं तो अगर हमने उसमें कुछ गम लाइक सब्सटेंस ऐड किया है तो वो टैबलेट जो है इजीली पंच हो जाती है. सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन योर टैबलेट्स ऑल्सो. देन कम्स योर कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज. इसके बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, सोडियम CMC, वो आपके मतलब इसमें केमिकली जो है डिफरेंट फॉर्म्स बनाई जाती है टू अचीव समथिंग. कि अगर हम किसी गम का जो है लो विस्कोसिटी चाहते हैं, मीडियम विस्कोसिटी चाहते हैं, हाई विस्कोसिटी चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन all the types of viscosity which you want in your suspension, इसके बहुत सारे derivatives है, but you don't have to go into detail, you just have to remember the name. So this is your microcrystalline cellulose. ये थोड़ा जो है spherical shape में होता है and it is जब आप इसको टच करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रिटी होता है in comparison to sodium CMC, ठीक है. फिर आपका advantages है, so you don't have to go into advantages. Then comes your second major ingredient which goes into your suspension is your wetting agents, ठीक है. अब I told you कि there are few drugs या few substances कि जिसको हम अगर vehicle में dissolve कर रहे हैं, vehicle क्या है आपका, जिसमें आपने सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, जिस लिक्विड में आपने सस्पेंशन प्रिपेयर करना है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो पार्टिकल्स जो है वो मीडियम में जाते ही नहीं है, इधर वो सरफेस पे जो है वो सरफेस पे ही रह जाएंगे, वो अंदर जाएंगे नहीं, बिकॉज उन पार्टिकल्स के ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, एयर का लेयर होता है उसके ऊपर, तो वो मीडियम में नहीं जा पाते. अगर उसे हमने मीडियम में डालना है, प्रॉपरली डिस्पर्स करना है, वी हैव टू डिस्प्लेस दैट एयर, हमें वो एयर डिस्प्लेस करना पड़ता है. सो फॉर डिस्प्लेसिंग दैट एयर वी यूजुअली यूज वेटिंग एजेंट्स. तो वेटिंग एजेंट क्या करेगा, एयर को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी लेयर बना देगा पार्टिकल के सराउंडिंग में. तो वो पार्टिकल जो है जो वेटिंग एजेंट का लेयर है जिसमें वो इजीली आपका क्या है व्हीकल में आ जाता है, वाटर में आ जाता है, ठीक है. सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हमारे मटेरियल दो ही टाइप्स के हो सकते हैं, या तो हाइड्रोफिलिक हो सकता है या हाइड्रोफोबिक हो सकता है. हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ठीक है. अब सपोज यू आर प्रिपेयरिंग एनी सस्पेंशन इन वाटर और आपका जो इंग्रेडिएंट है वो भी वाटर लविंग है, तो आप उसका सस्पेंशन जब प्रिपेयर कर रहे हो वो इजीली बन जाएगा. बट इफ योर मटेरियल जिसका आप सस्पेंशन बना रहे हो इट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज वाटर हीटिंग, तो अगर वो वाटर हीटिंग सब्सटेंस है और आपने इनसॉल्युबल पार्टिकल जो है वाटर में ऐड किए, वो क्या होंगे, वो सरफेस पे ही रह जाएंगे, वो जो है वाटर के साथ जो है डिसॉल्व भी नहीं होंगे. या अगर सपोज वो वाटर के अंदर भी चलेगी तो वो क्या है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो है वो बना लेंगे, वो प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं होगा, बिकॉज दोज पार्टिकल्स आर योर वाटर हीटिंग. तो उस केस में व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड अ वेटिंग एजेंट. आप क्या करोगे, उसमें वेटिंग एजेंट ऐड करोगे, वेटिंग एजेंट उन पार्टिकल्स की एयर को डिस्प्लेस कर लेगा. तो प्रॉपरली क्या है, अब आपने अगर वेटिंग एजेंट ऐड किया है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे पूरे लिक्विड मीडिया में, ठीक है.
अब अगर आपका जो मटेरियल है वो मतलब हाइड्रोफोबिक है, मैंने कहा वाटर हीटिंग है, उसको वेट करने के लिए हम कौन से लिक्विड यूज करते हैं? हम नॉन पोलर लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो वाटर हीटिंग है, तो वो पोलर लिक्विड्स के साथ जो है वेट नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो वाटर हीटिंग है तो वो ऑब्वियसली पोलर लिक्विड हीटिंग भी होगा, बिकॉज मोर पोलर इज सब्सटेंस मोर हाइड्रोफिलिक द सब्सटेंस इज। जितना नॉन पोलर सब्सटेंस है उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स को वेट करने के लिए वी यूज नॉन पोलर लिक्विड्स, ठीक है। सो नाउ concentration of wetting agent, you can only use wetting agent up to the concentration of 0.5%। आप जितना भी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हो, अगर आपने वेटिंग एजेंट ऐड करना है तो वो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सिर्फ 0.5% होगा, इससे ज्यादा जो है इट इज नॉट परमिसिबल। ओके, गॉट माय पॉइंट? शैल आई मूव ऑन? यस मैम। ओके, सो मूविंग ऑन टू, ये तो हुआ वेटिंग एजेंट का काम। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यू हैव एडेड द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जो है वो उनमें एग्रीगेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा एग्रीगेशन हो रहे हैं उनमें, ठीक है। सो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यू कैन ऐड सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट क्या करता है? पार्टिकल्स के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या करेगा? पार्टिकल्स के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम करेगा, सो दैट वो उसमें भी जो है सर्फेक्टेंट का रोल भी जो होता है दैट ऑल्सो डिस्प्लेसेस योर एयर, वो भी आपकी एयर की लेयर को डिस्प्लेस कर लेता है और वो खुद की कोटिंग प्रोवाइड कर देता है वहां पे। अदर देन दैट वो क्या करेगा? इंटरफेशियल टेंशन कम करेगा बिटवीन योर ड्रग पार्टिकल्स। ड्रग पार्टिकल्स एज जो ड्रग पार्टिकल एंड योर लिक्विड मीडियम, दोनों के बीच में कुछ टेंशन होगी, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस इंटरैक्शन को, उस इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए वी ऐड सर्फेक्टेंट्स। जैसे ही वो इंटरफेशियल टेंशन कम हुई बिटवीन द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एंड योर लिक्विड जिसमें आप डिस्पर्स करना चाहते हो, तो आपके जो है पार्टिकल्स जो है इजीली क्या हो जाएंगे? आपके लिक्विड में सस्पेंड हो जाएंगे, वो लिक्विड से वेट हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अब जनरली whenever you are going to add any surfactant, so you will use non ionic surfactant, ठीक है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो है मेजर केसेस में आप यूज करोगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग आयनिक। आप अपनी तरफ से जबरदस्ती कोई आयनिक चीज नहीं डालना चाहोगे कि उसमें आयंस में ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगा। सो हम प्रेफर क्या करेंगे कि अगर हमारे पास देयर इज अ सेट ऑफ सर्फेक्टेंट, उसमें से हम प्रेफर किसको करेंगे? नॉन आयनिक को, ताकि कोई भी जो है इलेक्ट्रिकल रिपल्शंस या अट्रैक्शन ना हो पार्टिकल्स, सर्फेक्टेंट और ड्रग पार्टिकल के बीच में या सर्फेक्टेंट और लिक्विड के बीच में, ठीक है। सो पॉलीसोर्बेट 80 इज द मोस्ट कॉमनली यूज सर्फेक्टेंट। ये क्या है? इट इज नॉन आयनिक और इट डज नॉट क्या कहते हैं, इट इज नॉन टॉक्सिक। वो नॉन टॉक्सिक भी है। यू कैन यूज दिस फॉर इंटरनल यूज, अगर आप चाहे ओरल सस्पेंशन बना रहे हो, चाहे आप टॉपिकल सस्पेंशन बना रहे हो, सो यू कैन यूज पॉलीसोर्बेट 80। नाउ देयर आर फ्यू केसेस जिसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो है वो हमारी सस्पेंशन को क्या कर रहा है? हमारी सस्पेंशन को वो खराब कर रहा है। इन दोस केस आपको आयनिक सर्फेक्टेंट भी यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में हमें कभी कभी आयनिक सर्फेक्टेंट भी यूज करने पड़ते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन what are the problems which we are facing while formulating our suspension and what type of suspension is desired, you can choose the type of surfactant। आप किसी भी टाइप का surfactant यूज कर सकते हो। So are you all aware with the term of कि how do detergents work? Detergents कैसे work करते हैं? 11th 12th या 10th 11th? हाँ, उस मोमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट एक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। जैसे डिटर्जेंट कैसे एक्ट करता है कि वो आपका जो ऑयली डर्ट लगी है हमारे क्लोथ्स के ऊपर, अब अगर आप उसको डायरेक्टली, अगर उस ऑयली जो हमारा स्टेन है उसको हम वाटर में डिप करते हैं तो वो स्टेन नहीं निकलता। लेकिन इफ वी डिप दैट क्लोथ जिसमें ऑयली स्टेन लगा हो, उसको अगर हम सर्फ में डिप करते हैं, सर्फ डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो डिटर्जेंट में क्या होता है? सर्फेक्टेंट्स होते हैं।
वो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, वो सर्फेक्टेंट उस ऑयल के ऊपर अपना लेयर बना देते हैं। तो जब वो ऑयल के ऊपर अपना लेयर बना लेंगे तो वो इजीली वेट हो जाते हैं विद योर वाटर, वो वाटर के साथ इजीली वेट हो जाते हैं, और वाटर क्या करता है, उस डर्ट को एक्सट्रैक्ट कर देता है खुद में। तो आपका जो स्टेन है, इंस्टेड ऑफ क्लोथ, वो किस में डिसॉल्व हो गया, अब वो वाटर मीडियम में चला गया, एंड व्हेन यू टेक आउट योर क्लोथ, तो आपका क्लोथ क्या होता है, वो क्लीन बाहर निकलता है, उसमें अब क्या है, स्टेन नहीं है। सो दैट इज द एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट हेयर। अब आप मान लो आपका जो ड्रग पार्टिकल था, इट वाज, वो उस पे एयर का लेयर था, या इट वाज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब आप उसको एज इट इज अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो या सस्पेंड कर रहे हो, डिसॉल्व नहीं सस्पेंड, तो वो वाटर में आपके सस्पेंड ही नहीं हो रहा है, वो नहीं सस्पेंड हो रहा है, वो या तो सरफेस पे रह रहा है, और अगर वो अंदर भी जा रहा है तो वो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे जुड़ के बस एक जो है उन्होंने बॉल टाइप फॉर्म कर दिया है। सो यू हैव अ प्रॉब्लम। सो आपको क्या करना है, आपको वो सस्पेंड करना है पूरे मीडियम में। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट का क्या प्रॉपर्टी है कि वो उन पार्टिकल्स के ऊपर से एयर को डिस्प्लेस कर देगा, उन पार्टिकल्स की और लिक्विड के बीच में जो भी टेंशन हो रही है, इंटरफेशियल टेंशन हो रही है, उसको रिड्यूस कर देगा। जब इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होगी तो वो पार्टिकल्स आपके इजीली पूरे मीडियम में सस्पेंड हो जाएंगे। सो गॉट माय पॉइंट, शैल आई मूव ऑन? यस मैम। ओके, मूविंग Yes, ऑन ma'am. टू कितने टाइप्स के सर्फेक्टेंट है आपके। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स एज वेल एज सस्पेंडिंग एजेंट्स। वो नेचुरल हो सकते हैं, वो सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, वो सिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी ड्रग पार्टिकल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, आपका ड्रग पार्टिकल कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है इट इज वाटर हेटिंग, वो क्या है, वाटर हेटिंग है। तो आप अगर उस ड्रग पार्टिकल को वाटर में डालोगे, अब वो वाटर हेटिंग है, तो आपका सस्पेंशन नहीं बन पाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, उस केस में आप उसको किसी भी हाइड्रोफिलिक कोलॉइड से कोट कर दीजिए। मतलब आप ऐसा उसमें सस्पेंडिंग एजेंट या वेटिंग एजेंट डाल दीजिए जो उसको हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड कर दे। तो आपके हाइड्रोफोबिक पार्टिकल के सराउंडिंग में क्या बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक जो है लेयर आ जाएगी। अब हमने जिसमें हमारी हाइड्रोफिलिक लेयर लगी है, अगर उस पार्टिकल को, उस कोटेड पार्टिकल को इफ यू वांट टू डिस्पर्स इन वाटर, तो वो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल के सरफेस पे क्या आ गया, हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट आ गया। लिक्विड कैसा है आपका, हाइड्रोफिलिक है। अब जो है दो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स, दोनों के फेसेस कैसे हो गए, हाइड्रोफिलिक हो गए। तो उन केस में इंटरफेशियल टेंशन जो है कम होगी। जैसे ही इंटरफेशियल टेंशन कम होगी, आपका पार्टिकल जो है प्रॉपरली वेट हो जाएगा और प्रॉपरली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब ये वाले अगर आप हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, अब हमें पता है कि वो हर एक पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल की टेंशन को कम कर देगा, उसकी एयर को जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो अब मुझे ये बताओ, जिस केस में हमने कोलॉइड ऐड किया है, वो सस्पेंशन आपकी फ्लॉक्यूलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या डीफ्लॉक्यूलेटेड? डिफ्लोक्यूलेटेड। डीफ्लॉक्यूलेटेड, बिकॉज उसने इंटरफेशियल टेंशन कम कर दी है। जब इंटरफेशियल टेंशन कम कर दी है, तो पार्टिकल्स क्या है ना, वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, ना एक दूसरे से जो है अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी टेंशन कम होगी है आपस में, ठीक है। तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट में। इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल क्या, जस्ट इमेजिन इंटरफेशियल टेंशन आप कैसे समझो। सपोज देयर इज टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है, उन दोनों के बीच में क्या है, टेंशन है। वो दोनों ग्रुप्स आपस में झगड़ेंगे या नहीं झगड़ेंगे, वो झगड़ेंगे आपस में। एक और ग्रुप है, एक और ग्रुप में यू हैव एडेड अ मीडिएटर, आपने बीच में एक मीडिएटर ऐड कर दिया जो दोनों पार्टीज को समझा के रखेगा बीच में कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दिस इज बैड फॉर यू। सो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ योर वेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट्स। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। Okay. So moving on to कि when you are preparing suspension, तो सबसे common example तो सबको पता है कि कौन सा यूज होता है, वाटर यूज होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि वाटर का विस्कोसिटी इज वेरी लो। तो वाटर में अगर हम कोई भी चीज डालेंगे तो वो क्या होगा, बेस पे सेटल हो जाएगा, वाटर में ऐड करेंगे।
सो वी वांट कि हमारा जो लिक्विड मीडियम है इट शुड बी स्लाइटली विस्कस, वो थोड़ा सा विस्कस हो, ताकि अगर हम उसमें कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इजीली सेटल ना हो। सो अब देयर आर टू थिंग्स विच यू कैन डू, या तो आप सॉल्वेंट ही ऐसा सिलेक्ट करो जिसकी खुद की कोई विस्कोसिटी हो, या फिर आप बाहर से विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए कुछ एजेंट्स डालो। सो नाउ कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट्स है जिनकी खुद की कुछ विस्कोसिटी होती है वो है आपके ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट थिंग कि एक तो ये विस्कस होते हैं, तो इसमें अगर आप कोई भी सब्सटेंस ऐड करोगे वो बहुत जल्दी सेटल नहीं होगा। दूसरा चीज है कि सपोज आपको वो सस्पेंशन जो है उसका मीडियम आपको क्या रखना है, वाटर रखना है, तो अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स को पहले इनसॉल्वेंट में जो है वो सस्पेंड करो, फिर वाटर में सस्पेंड करो, तो ये जो भी आपकी कंपोनेंट होंगे वो मिसिबल होंगे आपस में, बिकॉज ये भी क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्या होते हैं, दे आर ऑल मिसिबल विद योर वाटर, बिकॉज ये जो सॉल्वेंट्स हैं इनकी ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इनकी ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंड इनकी सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी लिक्विड एयर इंटरफेशियल टेंशन को भी कम कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपका पार्टिकल था कोई, उसके ऊपर एयर का लेयर था, आपने उसको जो है ग्लिसरीन में डिप कर लिया, ग्लिसरीन में डिप किया तो ग्लिसरीन क्या करेगी, एयर को डिस्प्लेस कर देगी। अब आपने वो ग्लिसरीन और ड्रग का जो मिक्सचर है उसको वाटर में डाल दिया, तो वो इजीली आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, बिकॉज उसने लिक्विड एयर इंटरफेशियल टेंशन को कम कर दिया है, एयर को आपके ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ने जो है डिस्प्लेस कर दिया है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर कोटेड विद ग्लिसरीन, दे इजीली पेनिट्रेट योर लिक्विड, ठीक है, एंड दे आर इजीली वेटेड बाय योर लिक्विड। जस्ट इमेजिन यू हैव 2 सिलेंडर्स, आपके पास 2 सिलेंडर्स है, ठीक है, एक सिलेंडर में देयर इज वाटर और आपने उसमें क्या करना है, एक व्हाइट कलर की आपके पास मेडिकामेंट का पाउडर है, ड्रग है, जिसको आपने उसमें सस्पेंड करना है। यू फिल वाटर इन योर कंटेनर, आपने सिलेंडर में 50-50 ml वाटर ऐड कर दिया। अब क्या करोगे आप, एक में आपने क्या है, सिंपल पाउडर ऐड कर लिया, बट दैट पाउडर जो है इट कंटेन्स योर एयर का लेयर लगा है उसमें। अब जब उसमें एयर का लेयर लगा है तो वो क्या होगा, वो आपके वाटर के सरफेस पे ही रह गए। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में आपने ड्रग ऐड करनी है, लेकिन ड्रग आपने क्या किया है, ड्रग को पहले ग्लिसरीन में जो है ट्राइचुरेट कर दिया है, मोटर पेसल में, मोटर पेसल में ग्लिसरीन लिया, ड्रग डाली और उसको ट्राइचुरेट कर दिया, वो पेस्ट आपने अब सस्पेंशन में ऐड किया। तो जब आप वो वाला पेस्ट ऐड करोगे, बिकॉज उसमें ग्लिसरीन का लेयर है, ग्लिसरीन ने क्या कर दिया है, एयर को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो आपका इजीली डिस्पर्स हो जाएगा। तो उस जिस सिलेंडर 50 ml में आप पेस्ट ऐड कर रहे हो ऊपर से, वो आपको क्लियर एक वो दे देगा, सस्पेंशन दे देगा, जिसमें व्हाइट कलर का पूरा सस्पेंशन होगा। लेकिन जिसमें आपने जो है ये आपका ग्लिसरीन नहीं ऐड किया था, उसमें आपके पार्टिकल्स क्या है, सिर्फ सरफेस पे रह जाएंगे वाटर के, और नीचे सिर्फ क्लियर वाटर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट। So got my point? Why do we add certain types of solvent which can enhance the wetting of your particles? Yes, ma'am. Is it clear to you? अब हमने दोनों, आप Yes, ma'am. दोनों एग्जाम्पल को रिकंसीडर करो, दोनों एग्जाम्पल को रिकंसीडर करो, जिसमें ग्लिसरीन प्लस वाटर है और जिसमें सिर्फ वाटर है, तो दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? In which glycerine is present? ग्लिसरीन जिसमें ग्लिसरीन प्लस वाटर है। और हमने जब स्टोक्स लॉ पढ़ा था, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता था कि वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो मतलब आपके ड्रग पार्टिकल्स जो ग्लिसरीन प्लस वाटर में है वो जल्दी सेटल नहीं होंगे, और आपके जो ड्रग पार्टिकल्स प्लेन वाटर में हैं जिसकी विस्कोसिटी कम है, उसमें क्या होंगे, जल्दी सेटल हो जाएंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ सस्पेंशन वी वांट? वी वांट ऐसा सस्पेंशन जिसमें ड्रग पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इजीली, ठीक है, वो सस्पेंडेड रहे। देन कम्स योर अदर देन सॉल्वेंट्स, वी ऐड बफर्स, हम हमेशा बफर्स ऐड करते हैं।
बफर्स का क्या रोल होता है कि बफर जो है आपके फॉर्मुलेशन जो आपने बनाई है उसमें उसका जो है पीएच चेंज रेजिस्ट करता है, चाहे आप उस सस्पेंशन में कोई एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, बिकॉज आपका सस्पेंशन इज फाइनली गोइंग इनटू योर बॉडी, हमारे बॉडी में जा रहा है। अब सपोज देयर इज ओरल सस्पेंशन, तो ओरल सस्पेंशन हम जब दे रहे हैं, अगर मान लो हमारा सस्पेंशन जो है एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसमें बफर ऐड करेंगे। बफर क्या करेगा, अब मान लो हमारा जो सस्पेंशन था उसका पीएच क्या था, 7 था, हमने मेंटेन किया। अब हमने उसे ओरल रूट से ले लिया, स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, तो अगर हम अपना सस्पेंशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी सस्पेंशन का पीएच भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा स्टमक में जाते ही, बिकॉज स्टमक का एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट में हमने जो 7 पीएच की बफर बनाई थी, हो सकता है उसका पीएच रिड्यूस होके वहां पे 5 हो जाए, उससे हमारी ड्रग की प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। सो टू रेजिस्ट दैट पीएच चेंज we add ingredients, those ingredients are called as buffer। अब अगर हमने बफर ऐड किया है, अब आपने सेम 7 pH वाला सस्पेंशन लिया, अब वो स्टमक में गया, लेकिन वो एनवायरमेंट में चाहे एसिड है चाहे बेस है, तो स्टमक का एनवायरमेंट इज एसिडिक, उसका पीएच चेंज नहीं होगा, उस सस्पेंशन का पीएच कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। सो देयरफॉर बफर्स आर एडेड टू कीप योर मेडिकामेंट स्टेबल एट डिफरेंट पीएच। आपकी मेडिकामेंट का जो है प्रॉपर्टी लूज ना हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। एंड अदर देन मेडिसिनल प्रॉपर्टी, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है विद चेंज इन पीएच। हो सकता है एसिडिक पीएच में जो है वो जो है विस्कोसिटी कम हो जाता है किसी सब्सटेंस का या किसी लिक्विड का, हो सकता है बेसिक पीएच पे वो जो है जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो जाता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पीएच में हमारे सस्पेंशन का जो है रियोलॉजी चेंज, रियोलॉजी क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी उसका कैसा है, तो एनवायरमेंटल पीएच कैसा है, दैट अफेक्ट्स योर विस्कोसिटी, रियोलॉजी एज वेल एज योर मेडिकामेंट प्रॉपर्टी। सो टू अवॉइड दैट इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कि कोई भी इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ना आए, ना हमारे सस्पेंशन की फ्लो प्रॉपर्टी में आए, ना हमारे सस्पेंशन की मेडिकामेंट की एक्शन में आए, वी ऐड बफर्स। बफर्स का रोल क्या है, बफर्स दे रेजिस्ट एनी पीएच चेंज, वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं एनवायरमेंट में से, चाहे एसिड ऐड हो रहा है उसमें चाहे उसमें बेस ऐड हो रहा है, बट pH of your suspension will be preserved if you add buffers into it. So are you clear with this point? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So अब commonly used buffers क्या है आपकी commonly used buffers है कार्बोनेट्स, सिट्रेट्स, ग्लूकोनेट्स। अब जर्नल pH सस्पेंशन क्या होता है हमारा, 7.4 to 8.4। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा बफर किस pH रेंज को आपके मेंटेन करेगा, यू कैन यूज द टाइप ऑफ बफर। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन आपको क्या डिजायर्ड पीएच रेंज है, उसके पीएच रेंज के रेंज पे डिपेंड करते हुए आप क्या करोगे, अपना बफर को सिलेक्ट करोगे। फिर आता है आपका ऑस्मोटिक एजेंट्स। ऑस्मोटिक एजेंट्स का मतलब होता है, ऑस्मोटिक एजेंट्स आर दोज मटेरियल जो आपके सस्पेंशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना मेंटेन करके रखे जितना आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का है। एक बेसिक सा एग्जांपल लो कि यू आर इंजेक्टिंग एनी पेरेंट्रल सस्पेंशन, हमने एक सस्पेंशन बनाया है विच इज मेंट टू बी गिवन विया इंजेक्शन। अब हमें पता है कि हमने इंजेक्शन जो है सपोज आर्टरी में दे रहे हैं हम या वीन में दे रहे हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन है, वीन में ब्लड है, ब्लड का अपना एक उसमें ब्लड सेल्स है, उसमें फ्लूइड है, एक्सटर्नल फ्लूइड। तो क्या होता है कि अगर आपके सस्पेंशन का ऑस्मोमीटर इज नॉट कंपेरेबल टू सपोज योर आरबीसीज, आपके रेड ब्लड सेल्स के इक्वल उसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं हो, तो हो सकता है आपके रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाए या स्वेल कर जाए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑस्मोटिक प्रेशर कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है सस्पेंशन का। यू माइट हैव स्टडीड इन योर 11th एंड 12th की हम क्या है 0.9% NaCl यूज करते हैं। 0.9 NaCl का जो
परसेंट NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज इक्वलेंट टू योर रेड ब्लड सेल्स का। तो अगर आप 0.9% NaCl में रेड ब्लड सेल्स को ऐड करोगे तो रेड ब्लड सेल्स क्या है, उतने ही साइज के रहेंगे। लेकिन सपोज अगर आप इस रेंज के बाहर जाते हो या 0.9% से कम लेते हो या 0.9% से ज्यादा NaCl यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो गया। उसमें अगर आप रेड ब्लड सेल्स ऐड करोगे तो या तो आपके रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाएंगे या आपके रेड ब्लड सेल स्वेल कर जाएंगे, हो सकता है बर्स्ट भी कर जाए। सो यू हैव टू ऐड ऑस्मोटिक एजेंट्स इनटू सच सस्पेंशंस जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता है कंपेरेबल टू योर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। NaCl क्या मैंने बताया था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अलावा देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स जो कॉमनली यूज किया जाता है एज ऑस्मोटिक एजेंट, जैसे डेक्सट्रोज है, मैनिटोल है, सॉर्बिटोल है, सोडियम सल्फेट है, ग्लिसरॉल है। सो आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? ऑस्मोटिक एजेंट वाला पॉइंट समझ आया सबको? Am I audible? Yes, ma'am. ऑडिबल हूं ना मैं? Yes, ma'am. मैम रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। ऑस्मोटिक एजेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज इक्वलेंट टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। जैसे आप ब्लड का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब ब्लड में हमने अपनी सस्पेंशन इंजेक्ट करनी है, तो हमारी सस्पेंशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होना चाहिए कि वो ब्लड सेल्स को अफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर हमारी सस्पेंशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम या ज्यादा हुआ तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं या तो वो श्रिंक हो जाएंगे या वो स्वेल हो जाएंगे। हो सकता है ब्लड सेल्स आपके बर्स्ट भी कर जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें हमेशा जो है हमारी सस्पेंशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। कितना मेंटेन करना पड़ता है? जितना बायोलॉजिकल फ्लूइड का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो 0.9% NaCl होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होता है कि अगर आप उसमें ब्लड सेल्स को ऐड भी कर रहे हो तो ब्लड सेल्स ना तो उसमें श्रिंक होते हैं और ना ही उसमें स्वेल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो एक्सटर्नल मीडियम है, अगर आपका उसका ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाए, जैसे मतलब 0.9% की जगह हमने सिर्फ 0.1% यूज किया है या हमने 2% NaCl यूज कर लिया, उस केस में अगर आप उसमें ब्लड सेल्स डालोगे ऐसे NaCl के सॉल्यूशन में, सो योर ब्लड सेल्स विल ईदर श्रिंक या वो स्वेल कर जाएंगे। नाउ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑस्मोसिस के ऊपर कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाहर का कम है या ज्यादा है। आर यू ऑल अवेयर विद द टर्म ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस सबको पता है? यस मैम। Yes, ma'am. ऑस्मोसिस Yes, ma'am. कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है? Movement of water molecules from region of higher concentration to region of lower concentration. ठीक है। अब सपोज हमारे पास जो है हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया है 2%। अब अगर उसमें मैं रेड ब्लड सेल्स डालूंगी तो उसमें रेड ब्लड सेल्स स्वेल होंगे या श्रिंक होंगे? मैम रिपीट करना। रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने 2% जो है वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है और अब आप उसमें रेड ब्लड सेल्स ऐड कर रहे हो। अब रेड ब्लड सेल्स आप ऐड कर रहे हो तो वो रेड ब्लड सेल्स उसमें श्रिंक होंगे या स्वेल होंगे? श्रिंक होंगे। Ma'am, shrink होंगे। Sure. श्रिंक क्यों होंगे? मैम क्योंकि NaCl का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वो ना 0.9% वेट बाय वॉल्यूम में लिया जाता है, तभी वो आइसोटोनिक होता है, नहीं तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सपोज आपके NaCl का जो है कंसंट्रेशन दैट इज 0.1%, उसमें मैं रेड ब्लड सेल डाल रही हूँ तो उसमें क्या होगा? उसमें स्वेल होगा या श्रिंक होगा? स्वेल हो जाएगा मैम। उसमें हो स्वेल जाएगा। हो जाएगा, उसमें स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ योर ऑस्मोटिक एजेंट। वो क्या करता है? वो आपके सस्पेंशन को इतना ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि आपकी अगर बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ सस्पेंशन इंटरेक्ट कर रहा है
तो ना तो आपकी सस्पेंशन अफेक्ट हो और ना आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को कोई हार्म हो. सो आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So moving on to other than adding osmotic agents, we have to add preservative because we know कि suspension is a liquid dosage form. और majority of case में इसमें जो आपका vehicle होता है that is aqueous vehicle. And we all know कि अगर आपका environment aqueous हुआ तो आपकी उसमें microbial contamination बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है? So we उसके अलावा उसमें because हम suspending agents भी add करते हैं और जो मेजरली जो सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं दोज आर ऑफ नेचुरल ओरिजिन. वो नेचुरल गम्स होते हैं, जैसे ट्रेगाकैंथ हुआ, आपका अकेशिया हुआ, जैंथम गम हुआ. तो ये सारे जो गम्स है प्लस लिक्विड एनवायरनमेंट वो क्या होते हैं, दे प्रोमोट योर माइक्रोबियल ग्रोथ. तो उस माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू ऐड प्रेजर्वेटिव्स. ठीक है, आपने क्या करना है, उसमें प्रेजर्वेटिव ऐड करना है. अब आपने किस टाइप का प्रेजर्वेटिव ऐड करना है, आपने इस टाइप का प्रेजर्वेटिव ऐड करना है कि ना तो वो आपके सस्पेंडिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को खत्म करे, ना वो आपके सस्पेंशन के कलर को अफेक्ट करे, ना उसके फ्लेवर को अफेक्ट करे, और ना उसकी ऑर्डर को चेंज करे, और ना ही आपकी जो सस्पेंशन की अपीयरेंस थी या एलिगेंस थी या उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस जो थी ना वो उसको चेंज करे. सो दोज आर द आइडियल टाइप्स ऑफ प्रेजर्वेटिव जो आप ऐड करते हो. So these are few examples of preservatives which are added into suspension. So सबसे ज्यादा जो most widely used है वो है benzalkonium chloride. Benzalkonium chloride जो है उसका concentration range क्या है, 0.01 से 0.02%. Other than benzalkonium chloride आप propylene glycol भी use कर सकते हो, डाइसोडियम EDTA, benzoic acid, butyl paraben. आप ये सभी types के preservative use कर सकते हो depending on the pH desired as well as इसका concentration भी है, वो defined है कि कितना concentration range में आप इसको use कर सकते हो. ठीक है मैम, ये जो हाँ जी. कंसंट्रेशन है ये तो हमने मतलब पिछले सॉल्यूशन में ही पढ़ा था, हमें ये याद करने की जरूरत है, सिर्फ नाम याद कर चलेगा? नो, सिर्फ आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, बेंजलकोनियम क्लोराइड, इसकी याद कर लेना, बाकी किसी की याद, बाकी सिर्फ यू हैव टू रिमेम्बर द नेम. ठीक है, ओके, क्योंकि हम पिछले जो चैप्टर्स थे सॉल्यूशन वाले उसमें भी थे इसके ना. नहीं, इतना ज्यादा डिटेल फर्स्ट ईयर में है नहीं. मैं एक्चुअल में मैं आपको लेक्चर्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. बाकी अदर देन दैट आपके जो ई बुक्स हैं, मैं आपको ई बुक्स भी अपलोड कर दूंगी. आपको जितना ई बुक्स में गिवन है उतना ही आपको जो है स्टडी करना है. बाकी उसके अलावा यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. हम एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल्स भी एक दो नेम्स आपको पता होने चाहिए, बट कंसंट्रेशन रेंज जो है इतना डेप्थ में हमने नहीं जाना है कि वी हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन रेंज ऑफ स्पेसिफिक प्रेजर्वेटिव, इतना डिटेल में नहीं जाना. ठीक है, यस मैम. ओके. सो अदर, अब हमने प्रेजर्वेटिव्स भी डाल दिए. लास्ट में वी वांट कि हमारी सस्पेंशन जो हमने प्रिपेयर की है दैट शुड लुक एलिगेंट. अब उसकी एलिगेंस को एनहांस करने के लिए वी ऐड कलरिंग एजेंट्स. हम उसमें कलर ऐड करेंगे, हम उसमें फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं सो दैट उसमें एक अच्छा सा जो है उसका फ्लेवर भी आए. ठीक है, सो वेरियस टाइप्स ऑफ flavors which you can add is you can add ginger, you can add your spearmint oil. आप अगर उसको स्वीट टेस्ट देना चाहते हो तो आप उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लो. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑयल्स व्हिच यू कैन ऐड इनटू योर सस्पेंशन. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू कलरिंग एजेंट्स. कलरिंग एजेंट्स भी दोनों तरह के हैं, सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी है. ठीक है, और अगर आपकी ओरल यूज के लिए सस्पेंशन है तो मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या कलर्स होते हैं आपके, वो प्लांट कलर्स होते हैं. बिकॉज कई लोग जो है दे आर ओनली वेजिटेरियन, तो अगर आप उसमें एनिमल ओरिजिन का कलर यूज कर रहे हो तो यू हैव टू मार्क दैट सस्पेंशन एज रेड, कि वो उसमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से कलर ऐड किए गए. तो इसीलिए वी प्रेफर कि हम सिर्फ प्लांट ओरिजिन का जो है कलर यूज करें. एंड देयर आर फ्यू रेंजेस, उसमें रेंजेस भी होता है कि अगर आप सिंथेटिक डाई डाल रहे हो तो सिंथेटिक डाई का रेंज होता है कि आपने 0.005% से 0.001% तक ही ऐड करना है.
बिकॉज जो सिंथेटिक डाइज होते हैं दे अगर इफ यू यूज दीज डाइज इन वेरी हाई कंसेंट्रेशन सो दे आर टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, सो इसीलिए कंसेंट्रेशन रेंज डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो जो कलर रेंज है या जो टाइप ऑफ कलर है दैट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री का अपना एक इंडिविजुअल सेट जो है उन्होंने रेंज सेट किया हुआ है कि आपने ये वाला कलर जो है इट कैन बी यूज्ड इन आवर कंट्री। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड कि कौन सा कलर यूज करना है, कितने कंसंट्रेशन में यूज करना है, वो पर्टिकुलर कंट्री के फार्माकोपिया में आप देख सकते हो। जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन इन इंडिया, तो इंडिया में अगर आपको कोई सस्पेंशन इंडिया के मार्केट में मैन्युफैक्चर करना है तो आप इंडियन फार्माकोपिया देखोगे, उसमें से कलर्स देखोगे, उसमें से उसका रेंज देखोगे और उस हिसाब से यू विल प्रिपेयर योर सस्पेंशन। नाउ सिमिलरली इफ यू गो इनटू यूरोप, अगर आपको यूरोप के मार्केट में कोई सस्पेंशन लॉन्च करना है तो आप यूरोपियन फार्माकोपिया को उठाओगे, उसमें कलर्स देखोगे, कौन कौन से परमिसिबल है, क्या रेंज है। सो दैट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कलर। टिटेनियम डाइऑक्साइड अगर आप यूज करोगे तो आपको व्हाइट कलर मिलेगा, ब्रिलियंट ब्लू यूज करोगे तो आपको लाइट ब्लू कलर मिलेगा, इंडिगो कार्माइन कलर यूज करोगे डार्क ब्लू, एमरेंथ रेड यूज करोगे तो रेड, टार्ट्राजीन यूज करोगे तो येलो, अनाटो सीड्स यूज करोगे तो येलो टू ऑरेंज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सीड्स। सो हियर यू कैन ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अनाटो सीड्स, ये अनाटो सीड्स है। इसको जब क्रश करते हैं, इसको जब डिसॉल्व करते हैं तो ये ऐसा येलो टू ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज येलो टू डार्क ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ कलर विच यू वांट इन योर सस्पेंशन, यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ कलर, ठीक है। फिर लास्ट में आपके आते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स की। अगर आपकी बिटर टेस्टिंग ड्रग थी, जैसे पैरासीटामोल है, इट इज बिटर, तो पैरासीटामोल का टेस्ट मास्क करने के लिए भी यू कैन ऐड स्वीटनिंग एजेंट्स। तो उसमें आप शुगर्स भी ऐड कर सकते हो, शुगर अल्कोहल भी ऐड कर सकते हो। शुगर की कॉमन एग्जांपल है जाइलोज, राइबोज, ग्लूकोज, मैनोज, और शुगर अल्कोहल्स के हैं सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल और मैनिटॉल, ठीक है। अगर आप स्वीटनर कोई भी स्वीटनिंग एजेंट आप सस्पेंशन में डाल रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन रेंज क्या है, दैट शुड ओनली बी 15 to 70% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउ समटाइम्स वी हैव टू ऐड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या है, एस्पार्टेम है, सोडियम सैकरिन है, सोडियम साइक्लामेट है। बिकॉज कुछ सस्पेंशन ऐसी होती है जिसमें अगर हम नेचुरल सोर्स का स्वीटनर यूज करें तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, बिकॉज शुगर एक्ट्स एज योर, जैसे ग्लूकोज हुआ आपका, ग्लूकोज, मैनिटॉल, ये क्या करते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं कुछ केसेस में, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ को। सो उस केस में यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद योर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अदर देन दैट जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं वो जो है चीप होते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। सो इफ यू वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर सस्पेंशन, so you can always replace natural sweetening agent with your artificial sweetening agent. Then comes your humectants. Humectants का रोल क्या होता है, humectant जो है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे सपोज पैरासीटामोल था, तो वो पैरासीटामोल से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेगा खुद में। अब बिकॉज पैरासीटामोल पार्टिकल में मॉइस्चर नहीं है तो वो उसको प्रिजर्व कर लेगा फ्रॉम डिग्रेडेशन, बिकॉज मॉइस्चर हो सकता है आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करे, मॉइस्चर हो सकता है आपका उसमें कोई भी रिएक्शन कर दे, बिकॉज वी नो वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो टू प्रिवेंट दैट वी यूज ह्यूमेक्टेंट्स, और इसके कॉमन एग्जांपल है आपके ग्लिसरॉल हुआ, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या करते हैं, अगर आप ये ऐड कर रहे हो सस्पेंशन में तो ये आपके जो ड्रग पार्टिकल है उसमें से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस मॉइस्चर को, तो कि आप सो दैट योर ड्रग पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। देन कम्स योर एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज वी नो इट इज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म और इसमें एक्वस मीडिया भी होगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हो सकता है मेडिकामेंट का प्रॉपर्टी लूज हो जाए या हो सकता है खत्म ही हो जाए उसका एक्शन। सो टू प्रिवेंट दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी, so you use antioxidants. Antioxidants क्यों यूज करते हैं, to prevent oxidation reaction. इसके कॉमन एग्जांपल है ascorbic acid, then erythrobic acid, thioglycerol, butylated hydroxyanisole, tocopherols, butylated hydroxytoluene. So these are various types of antioxidants which you can add into your suspension
to prevent the oxidation reactions. Then from tomorrow we will study that how do you prepare suspension on a small scale, कि आप laboratory scale पे अगर suspension prepare करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे. So I hope today's topic is clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी को कोई डाउट है they can stay, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है they can leave the meeting. मैम excuse me, Just a ma'am. second, just a second, just allow me to take your attendance first.